Protozoa was discovered by Antony von Leeuwenhoek. These have eukaryotic. These are eukaryotic organisms, means they have a nucleus. Like bacteria are prokaryotic, but these are eukaryotic organisms. They have nucleus, mitochondria, and all other cell organelles. Now another thing is structure of nucleus. The nucleus has two types: vesicular nucleus, and second one is compact nucleus. Vesicular nucleus is present in Mastigophora, and compact nucleus have large amount of chromatin and a small amount of nucleoplasm. This nucleus is found in amoeba, proteus. Another important thing is that protozoa have two nuclei at each stage of their development. They might be two similar nuclei, or they might be two dissimilar nuclei. Like two nuclei. सर आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो मतलब वॉल्यूम धीरे है। हाँ हाँ सर। अभी ठीक आ रही है? हाँ अभी सही आ रही। So protozoa have two nuclei at any stage of their development. They may have two similar nuclei, as in case of Giardia. Means Giardia have two similar nuclei, and it may have two dissimilar nuclei. If they have two dissimilar nuclei, one nuclei is smaller and one is bigger. So one is micro and one is macronucleus. So micronucleus remains dormant until sexual process begins. Another type of nucleus is trophonucleus. It is present in trypanosome. Another thing is locomotion. Locomotion is either by gliding or by the organelles like pseudopodia, flagella, cilia, or in gliding as in toxoplasma, sarcocystis, and any other form which do not have these all organelles like cilia. Another thing is nutrition. Nutrition is holophytic, holozoic, and saprozoic. Holozoic means they can synthesize carbohydrate with the help of chlorophyll. Example are phytoflagellates.
Holozoic are also known as phagotrophic. Trophic. They utilizes preformed particulate food. And saprozoic absorbs organic food material through general body surface. Mainly they absorb the dissolved food material through general body surface by diffusion. Another thing is excretion in protozoa. It is either by diffusion through body surface or by contractile vacuole. Now the most important thing is reproduction. First, in protozoa, asexual reproduction is present, which is followed by sexual reproduction. Asexual में first one is binary fission. It may be longitudinal or transverse. ये सब चीजों को अभी अच्छे से देखते जाना, क्योंकि अभी जब अपन ये प्रोटोजोआ की अलग अलग फैमिली और स्पीसीज पढ़ेंगे ना, उसमें ये सब कहीं ना कहीं आएगा उनके लाइफ साइकिल में, तो उसको समझने में आसानी रहेगी. एंड सेकंड इज बाय बडिंग. Budding and binary fission are type of asexual reproduction present in protozoa. Budding, you all know that ki small daughter cell separates from mother cell and grow to full size. Budding, budding is if the budding is internal, it is known as endodiogeny. In this, two daughter cell within the mother cell separates and then breaks that mother cell, and that daughter cells comes out. And in this case, if there are more than two daughter cells which are formed, then it is called as endopolygyny. There is one term for internal budding. Internal budding is known as endocyclogony. Third form of asexual reproduction is multiple fission or schizogony or merogony. Merogony and schizogony are form of asexual reproduction. This is found in phylum Apicomplexa. In this, various stages are formed like scisons, agamons. We will study it later in the phylum Apicomplexa itself.
Another form is sexual multiplication. In sexual, there is syngamy and conjugation. In conjugation, two individuals come together and fuse. In syngamy, two nucleus fuse and a gamete is formed. And if two gametes which are fused are similar, if they are similar, they are known as isogametes. And this process is known as isogamy. And if the fused gametes are dissimilar, then it is known as anisogamy. In anisogamy, one is smaller and one is larger. So with the smaller one is male and the larger one is female. So smaller microgamete is male, larger macrogamete is female. Another important thing is difference between bacteria, protozoa and rickettsia. बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज होती है माइक्रो में भी और प्रोटोजोलॉजी में भी. तो सबसे पहले तो बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक, प्रोटोजोआ जो है यूकैरियोटिक. और रिकेट्सिया में क्या है कि ये बैक्टीरिया ही है लेकिन ये सेपरेट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है. इनका एक कॉमन फीचर जो होता है कि जो रिकेट्सिया होते हैं ना वो आर्थ्रोपोड वेक्टर से ट्रांसमिट होते हैं. और स्मॉलर होते हैं डायमीटर में, अराउंड 0.25 माइक्रोन इन डायमीटर. And protozoa lacks cell wall. Bacteria have cell wall or also may not have cell wall, have or have not. बार बार बैक हो जा रहा है. यहाँ तक आवाज आ रही थी ना मेरी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, रिकेट्सिया का जो डिफरेंस है. हाँ सर. हाँ सर, आ रही थी. तो वहां तक तो लिख लिया होगा ना तुम लोगों ने. हाँ सर, लिख लिया. हाँ तो बस उतना ही डिफरेंस था उसमें. प्रोटोजोआ में न्यूक्लियस होता है और हाँ वही, वो जो प्रोटोजोआ होते हैं वो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं बैक्टीरिया से. बस उतना ही डिफरेंस था जो मेन मेन था. बाकी उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं जो प्रोटोजोआ पैरासाइट है, जूनोटिक इंपॉर्टेंस है. जूनोटिक नहीं, जो वेटनरी के इंपॉर्टेंस है. तो सबसे पहले उसमें ट्रिपेनोसोमा से स्टार्ट करते हैं अपन.
तो trypanosoma are hemoflagellates. Means they live in blood, lymph and other tissues. They live in blood, lymph and other tissues. इसमें ट्रिपेनोसोमा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस. दे हैव 4 डेवलपमेंटल स्टेजेस. You can remember it by TEPA. First one is trypomastigote. Second is epimastigote. And third one is promastigote. And fourth is amastigote. तो इसमें सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर होता है बेसिक सा वो में ये तो फ्री फ्लैजेलम होता है. फिर एक न्यूक्लियस होता है. आउटर कवरिंग इज नोन एज पेलिकल. और एक होता है काइनेटोसोम, जहां से फ्लैजेला का ओरिजिन होता है. वो काइनेटोसोम से फ्लैजेला का ओरिजिन होता है. और ये होती है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन. और काइनेटोसोम के जस्ट नीचे होता है काइनेटोप्लास्ट. काइनेटोप्लास्ट डीएनए का होता है. सर्कुलर नेटवर्क होता है डीएनए. ये ट्रिपोमेस्टिगोट का कैरेक्टर है कि जब फ्लैजेला पेलिकल से अटैच्ड होता है, मतलब इसमें ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया ट्रिपोमेस्टिगोट का स्ट्रक्चर है. इसमें जो काइनेटोप्लास्ट होता है ना पोस्ट न्यूक्लियर होता है. जैसे ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर के पोस्ट में है. जो पोस्ट न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट होता है वो ट्रिपोमेस्टिगोट में होता है. ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है वर्टिब्रेट होस्ट के लिए. और ये मिलती किसमें है? फाउंड इन वर्टिब्रेट. इसमें बस ये याद न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट होता है और ये इन्फेक्टिव स्टेज फॉर वर्टिब्रेट होस्ट होती है एंड फाउंड इन वर्टिब्रेट एंड आर्थ्रोपोड वेक्टर. उसके बाद आता है एपिमेस्टिगोट. एपिमेस्टिगोट और ट्रिपो में एक अंतर है, वो है जक्स्ट्रा न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट. मतलब ये जो काइनेटोप्लास्ट है वो न्यूक्लियर से पास में होता है, न्यूक्लियस के पास में होता है. जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये काइनेटोप्लास्ट है, मतलब सॉरी न्यूक्लियस से ऊपर होता है. ये न्यूक्लियस है तो ये काइनेटोप्लास्ट है. इसमें जक्स्ट्रा न्यूक्लियर काइनेटोप्लास्ट होता है. न्यूक्लियस पीछे होता है और काइनेटोप्लास्ट आगे होता है. और फिर काइनेटोप्लास्ट के आगे काइनेटोसोम होता है और यहाँ से फ्लैजेला जाता है. इसमें जो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है एपिमेस्टिगोट में वो छोटी होती है. दिस इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स. स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, बस ये किस में मिलता है वो जरूर याद रखना आप लोग को. जैसे एपिमेस्टिगोट इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स and trypomastigote is found in vertebrate plus also found but epimastigote is found in arthropods only. Third one is promastigote. Promastigote has short flagella. ऊपर वाले दोनों से छोटा फ्लैजेला होगा इसमें, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है वो यहाँ पे होगा और फिर
जो काइनेटोप्लास्ट होगा ना वो एंटी न्यूक्लियर होगा। इसमें जस्ट्रा न्यूक्लियर था, जस्ट थोड़ा सा ऊपर न्यूक्लियस ऊपर काइनेटोप्लास्ट था, और इसमें जो काइनेटोप्लास्ट है वो एंटी न्यूक्लियर है, बहुत आगे है वो। उसके बाद काइनेटोसोम यहाँ से स्टार्ट होगा और फ्लैजेला बहुत छोटा सा होगा। तो एपिमेस्टिगोट, सॉरी, प्रोमेस्टिगोट है शॉर्ट फ्लैजेला, इट इज फाउंड इन इनवर्टिब्रेट्स। ट्रिपोमेस्टिगोट मिलता है वर्टिब्रेट आर्थ्रोपोड में, एपिमेस्टिगोट आर्थ्रोपोड्स में, और प्रोमेस्टिगोट इनवर्टिब्रेट्स में। फोर्थ वन इज अमेस्टिगोट। Amastigot means without flagella. It is found in vertebrates, also in arthropods. So here it is kinetosome, kinetoplast, and this is nucleus. It does not have flagella. Then these were the stages of development of trypanosoma. And trypanosoma have all four stages: amastigote, promastigote, epimastigote, and trypomastigote. And there is one leishmania which have only amastigote and promastigote stage. Amastigote is found in vertebrate host and promastigote is found in invertebrate and culture. इसमें बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही बता रहा हूँ बस। जो याद करने की चीजें थी वही थी, वो अमेस्टिगोट, प्रोमेस्टिगोट, ट्रिपो और एपिमेस्टिगोट किस किस में मिलता है। ओके, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो स्पीसीज से रिलेटेड आते हैं, उनके स्पेसिफिक क्लिनिकल साइन सिम्टम्स से, उनकी थोड़ा बहुत लाइफ साइकिल। तो ट्रिपेनोसोमा इज एन इंटरसेलुलर पैरासाइट. It is present in blood and tissue fluid. Its life cycle is, it is transmitted by blood sucking insect. इसमें एक exception है, there is one exception of Trypanosoma equipadum, which is transmitted by coitus. This is an exception of Trypanosoma. All Trypanosomas are transmitted by blood-sucking insects except Trypanosoma equipadum. In its transmission, two type of development occur. First one is cyclical and second one is non-cyclical. And in cyclical, it requires insect as intermediate host. It occurs at two sites. First one is anterior station development and second one is posterior station development. Anterior station development means कि अगर वो उसके इंसेक्ट के सलाइवरी ग्लैंड, सपोज एंटीरियर होता है ना, मुंह तो एंटीरियर होता है, तो अगर सलाइवरी ग्लैंड या तो प्रोबोसिस में मल्टीप्लाई होगा ट्रिपेनोसोमा, और जब सलाइवरी ग्लैंड और प्रोबोसिस में मल्टीप्लाई होगा तो बाइट से ट्रांसमिट होगा, तो ट्रांसमिट बाय और पोस्टीरियर डेवलपमेंट का मतलब कि वो हाइंड गट में डेवलप होगा इंसेक्ट के। मोस्टली जो नॉन पैथोजेनिक टाइप ऑफ ट्रिप्स होते हैं ट्रिपेनोसोमा, उनका डेवलपमेंट जो होता है पोस्टीरियर स्टेशन डेवलपमेंट होता है, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा थिलेराई टेबनस से ट्रांसमिट होता है, तो टेबनस के हाइंड गट में ट्रिपेनोसोमा थिलेराई डेवलप होता है।
तो पोस्टीरियर स्टेशन डेवलपमेंट का एग्जांपल याद रखना है, वो है ट्रिपेनोसोमा थिलेराई। और नॉन साइक्लिकल में एक एग्जांपल है, वो है ट्रिपेनोसोमा इवांसाई। ये दोनों एग्जांपल बहुत जरूरी है। नॉन साइक्लिकल ट्रांसमिशन, नॉन साइक्लिकल डेवलपमेंट होता है ट्रिपेनोसोमा इवांसाई का, जिसको मैकेनिकल भी बोलते हैं। इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है नॉन साइक्लिकल में। ये बस मतलब बस मैकेनिकल है, बस जो इसकी वेक्टर होती है उसके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। और इसका एक कैरेक्टर और है ट्रिपेनोसोमा इवांसाई का, कि ये बहुत जल्दी इसकी डेथ हो जाती है। तो इसको ऐसी कोई फ्लाई चाहिए जो इंटरप्टेड टाइप ऑफ फीडिंग करेगी, एक जानवर में जाए फिर दूसरे जानवर में जाए, जल्दी जल्दी उसको, जैसे अभी उसने मील लिया उसके बाद उसको तुरंत अगले मील की जरूरत है। तो ऐसी फ्लाई चाहिए जो इंटरप्टेड फीडिंग करती है, तो वो टैबनस है। टैबनस है, स्टोमॉक्सिस है। तो नॉन साइक्लिकल ट्रिपेनोसोमा इवांसाई और पोस्टीरियर स्टेशन डेवलपमेंट ट्रिपेनोसोमा थिलेराई, ये दोनों चीजें यहाँ पे याद रखनी है। और नॉन साइक्लिकल का मैकेनिकल ट्रांसमिशन, बस वो कोई डेवलपमेंट नहीं होता वेक्टर के अंदर। अब on the basis of cyclical development, in in non-cyclical development there is no multiplication inside the arthropod vector, and on the basis of cyclical development trypanosomas are divided into two types, as we have already discussed that in anterior station development transmission is by inoculation, मतलब वो बाइट करेगा तब जाएगा वो। तो anterior station development there is salivaria. Trips are divided into two types on the basis of cyclical development. First one is salivaria, and second one is stercoraria. Posterior station development. Another important thing in TRIPT is, I have already discussed in general parasitology, that it has characteristic of antigenic variation. Due to this, they evade the immune response of the host body. They have variable surface glycoproteins. They have variable surface glycoproteins. So these glycoproteins change at regular intervals, so the proper antibodies are not developed inside the host body. So इनके लिए, ट्रिप्स के लिए अपन वैक्सीन भी इजीली नहीं मिलती है। ट्रिपेनोसोमा की वैक्सीन अपन इजीली नहीं बना सकते, क्योंकि इनके अंदर वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, वो रेगुलर इंटरवल पे चेंज करते रहते हैं। अगर सपोज ए टाइप का वो ग्लाइकोप्रोटीन है, उसके अगेंस्ट अपन वैक्सीन बना दिए, तो सपोज अगले इन्फेक्शन में वो बी टाइप का हो जाएगा, तो ये वैक्सीन इफेक्टिव नहीं रहेगी, क्योंकि जो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, वो दूसरे एंटीजन के अगेंस्ट एक्ट नहीं कर सकती है। उसमें पहली स्पीसीज है ट्रिपेनोसोमा इवांसाई। इसको सबसे पहले इवांस ने डिस्कवर किया था 1880 में। दिस इज फाउंड इन ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ। इट कॉजेस सर्रा। सर्रा मीन्स rotten, and in camel it causes Dipsera. Sarra is called as Dipsera in India. ट्रिपेनोसोमा इवांसाई का वेक्टर है टैबनस, जो कि इंटरप्टेड फीडिंग करती है। और इसका जो
ट्रांसमिशन है वो नॉन साइक्लिकल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई याद ही रखना है। ट्रेबेनस नॉन साइक्लिकल और ट्रिपेनोसोमा इवांसाई का ट्रांसमिशन नॉन साइक्लिकल होता है। इसके जो नेचुरल होस्ट हैं उसमें कैमल है, हॉर्स, डोंकी, कैटल, और इसकी बस वही लाइफ साइकिल वैसे ही ट्रेवेनस से ट्रांसमिट होता है, इंटरप्टेड फीडिंग हैबिट होती है उसकी, तो वो दूसरे होस्ट में जाके उसको बाइट करती है। और पैरासाइट जैसे पहले बताया मैंने, वो सरवाइव नहीं कर पाता ज्यादा टाइम तक एनवायरमेंट में, तो उससे अटैच हो जाता है और दूसरे में चला जाता है बस। और ये क्या क्या कॉज कर सकता है? पहले तो एनीमिया कर सकता है ये, इसकी पैथोजेनेसिस में एनीमिया हो सकती है, नोक्सिया हो सकता है, टिश्यू डैमेज हो सकता है, इन्फ्लामेशन, फीवर एक्सेट्रा। बस इसमें याद करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज वही है, ट्रिपेनोसोमा इवांसाई वाज डिस्कवर्ड बाय इवांस, इट causes सर्रा एंड टिप्सरा in camel, it is transmitted by tabenes, its transmission is non-cyclical। ट्रिपेनोसोमा इवांसाई का जो इन्फेक्शन है वो हॉर्सेस में ज्यादा सीवियर होता है, मोर सीवियर इन हॉर्सेस, बल्कि कंपैरेटिवली डोंकी और जो म्यूल्स होते हैं, डोंकी एंड म्यूल्स आर कंपैरेटिवली रेजिस्टेंट, not totally resistant but comparatively resistant than horse। The literal meaning of that Tipsera is 3 years। In this intermittent fever occur। सर्रा के ट्रीटमेंट के लिए अपन एक ड्रग यूज करते हैं, इसका नाम है सूरामिन, और इसके कंट्रोल के लिए अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और टेबनस फ्लाई का कंट्रोल कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड का उनके फ्लाइज के ब्रीडिंग प्लेसेस में। और इसकी डायग्नोसिस के लिए अपन, ये भी डायग्नोसिस भी इसका इंपॉर्टेंट है, सूरामिन एक ड्रग यूज करते हैं सर्रा के ट्रीटमेंट के लिए, वो इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस के लिए इसमें कई सारे टेस्ट हैं, उनमें से उन टेस्ट का नाम याद रखना है कि ट्रिपेनोसोमा की डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट यूज होते हैं। तो उसमें पहला है फॉर्मल जेल टेस्ट। ये अपन यूज करते हैं कैमल में। इसको कैसे करते हैं वो कोई पूछता नहीं है, ऐसे उसको जानने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मल जेल टेस्ट कैमल में करते हैं। उसमें वही फॉर्मेलिन लेते हैं और टेस्ट सीरम लेंगे, उसको सीरम निकालेंगे अपन पोस्ट से, और जैसे कैमल से सीरम ले लिया और फॉर्मेलिन में उसको मिक्स कर लिया। कैमल से ब्लड लेंगे, ब्लड से सीरम निकालेंगे, सीरम को फॉर्मेलिन में मिक्स करेंगे, अगर उसमें जेल फॉर्मेशन हो जाएगा तो वो पॉजिटिव है। और इसमें पहला है फॉर्मल जेल टेस्ट, सेकंड वन इज थाइमोल टर्बिडिटी टेस्ट। ये सब नाम आपको याद रखने की, ये ट्रिपेनोसोमा के डायग्नोसिस में काम आते हैं। ये मैच द कॉलम में भी पिछले बार आए थे। जॉन्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है स्टिल बमिडीन टेस्ट। फिर अपन इसमें एनिमल इनोकुलेशन भी कर सकते हैं, ब्लड लेके एनिमल में इंट्रापेरिटोनियली डाल देंगे। फिर इसमें इम्यूनो डायग्नोसिस, एक एलाइजा होता है, उसका नाम है सूराटेक्स, सूराटेक्स एलाइजा। कैट कर सकते हैं, कार्ड एग्लूटिनेशन ट्रिपेनोसोमल टेस्ट। पीसीआर डीएनए का प्रूव यूज करके कर सकते हैं।
एक इंट्राडर्मल टेस्ट होता है, मतलब इसमें एंटीजन, सस्पेक्टेड एनिमल से एंटीजन लेके इसमें जो सपोज हॉर्स है उसको अपने को लग रहा है कि इसको ट्रिपेनोसोमा का इन्फेक्शन है, तो अपन प्री फॉर्म्ड जो एंटीजन होता है उसको इस हॉर्स में डाल देंगे, तो अगर वहां पे अगर स्वेलिंग आती है तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर पहले से एंटीबॉडी होगी। जहां पे अपन इस एंटीजन को डालें अगर वहां पे मतलब हॉट हो जाता है या तो स्वेलिंग आती है तो वो पॉजिटिव होगा, नहीं होता है तो वो निगेटिव होगा। तो ये सारे टेस्ट के नाम याद रखने हैं। पिछली बार इनमें कुछ मैच तो कॉलम में आए थे, कुछ टेस्ट मैच करने थे। Now in this second species is Trypanosoma equipardum. Equipardum. It is transmitted by coitus. ट्रिपेनोसोमा में केवल यही एक ट्रिपेनोसोमा है जो coitus से ट्रांसमिट होता है, बाकी सारे आर्थ्रोपोड वेक्टर से ट्रांसमिट होते हैं। This causes disease name as Dorine in horses. It has three phases. Disease has three phases. First one is stage of edema. Second one is urticarial phase. And third one is paralysis phase. बस इसकी स्टेज याद रखनी है कि फर्स्ट स्टेज होती है स्टेज ऑफ एडिमा, सेकंड वन इज अर्टिकेरियल फेज, थर्ड वन इज फेज ऑफ पैरालिसिस। तो अर्टिकेरियल फेज में एक याद रखनी है, वो है डॉलर स्पॉट्स। मतलब इसमें प्लेक्स टाइप डेवलप्ड हो जाते हैं, स्पेशली मेनली इन फ्लैंक रीजन। जो डॉलर का सिंबल होता है ना, कुछ ऐसे होता है वो, तो डॉलर के सिंबल की तरह फ्लैंक रीजन में प्लेक्स डेवलप हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट लुक्स लाइक अ डॉलर, सो इट इज कॉल्ड एज अ डॉलर स्पॉट। तो डॉलर स्पॉट्स आर डेवलप्ड इन अर्टिकेरियल फेज ऑफ ट्रिपेनोसोमा इक्विपार्डम इन्फेक्शन, और फेज ऑफ पैरालिसिस में तो पैरालिसिस हो जाएगी। और इसके डोरिन के कंट्रोल के लिए या ट्रीटमेंट के लिए कुछ नहीं करते हैं, ये चीज आपको याद रखनी है कि डोरिन का जो कंट्रोल है उसमें अपन टेस्ट एंड स्लॉटर पॉलिसी करते हैं, जो भी पॉजिटिव आया उसको मार दो, कंट्रोल नहीं होता ये। उसको टेस्ट किए और स्लॉटर किए अगर पॉजिटिव आया तो। इसमें जो थर्ड स्पीसीज है वो है ट्रिपेनोसोमा थिलेराई। ट्रिपेनोसोमा का जो डेवलपमेंट होता है वो पोस्टीरियर स्टेशन होता है, साइक्लिकल है, वो पहले बता चुका हूँ। और इसमें इट इज द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ ट्रिपेनोसोमा। ये जनरली नॉन पैथोजेनिक होता है। इसके डायग्नोसिस में अपन एक मीडिया यूज करते हैं, एनएनएन मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं अपन नोवी मैकनील। फुल वो नाम पूरा नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, एनएनएन मीडिया, नोवी मैकलिन एंड निकोले मीडिया, ये तीन साइंटिस्ट के नाम है। So this was all about trypanosoma. It also causes turning sickness disease. Another
protozoa is Leishmania. So Leishmania has two developmental stages. First one is amastigote, which is found in vertebrates, and second one is promastigote, which is found in vector and also in culture. If we culture that Leishmania in laboratory, then promastigote stage will develop in that culture. इसके स्टेनिंग के लिए वो याद रखना है आपको कि इसमें Rabanowski stain is used for staining Leishmania. सर क्या यूज करते हैं? Stain Rabanowski. और it is found in macrophage. Mainly found in macrophage. तो जैसे ये भी एक इम्यून इवेजन का एग्जांपल है. मैक्रोफेज तो खुद एक फैगोसाइटिक सेल है और कोई पैरासाइट मैक्रोफेज के अंदर ही चला गया तो वो अपने आप को फैगोसाइट करेगी, अपने आप को खाएगी जब तो वो उसको खा पाएगी. तो ये भी एक इम्यून इवेजन का एग्जांपल है. ट्रिपेनोसोमा इम्यून इवेजन करता है बाय चेंजिंग इट्स वेरिएबल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लेishmania evade the immune response due to its location inside the host because it is present in macrophage. So it is found in macrophage and other cells of reticuloendothelial system in skin, liver, bone marrow, etc. तो अगर ये मैक्रोफेज के अंदर है तो ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है और जो ट्रिपेनोसोमा था वो इंटर था. ये इंट्रासेलुलर है, ट्रिपेनोसोमा इंटरसेलुलर पैरासाइट था. लीशमानिया जो डिसीज कॉज करता है वो है क्यूटेनियस लीशमानियासिस. वो होती है लीशमानिया ट्रॉपिका से. उसको अपन दिल्ली बॉयल भी बोलते हैं. ओरिएंटल सोर, इट इज आल्सो नोन एज ओरिएंटल सोर. इट इज आल्सो नोन एज ओल्ड वर्ल्ड क्यूटेनियस लीशमानियासिस. तो जो होस्ट हैं वो मेनली मैन है, डॉग है. बस इसमें इतना याद रखना है. लीशमानिया में क्यूटेनियस लीशमानियासिस करता है और एक विसरल लीशमानियासिस भी है, वो भी पढ़ाता है. इसके डायग्नोसिस के लिए अपन सेम एनएनएन मीडिया यूज करते हैं. इसका ट्रीटमेंट वो है, वो इम्पोर्टेंट है. इसमें अपन ट्रीटमेंट के लिए लिथियम एंटीमनी थायोमिलेट यूज करते हैं. इसकी एक जनरल लाइफ साइकिल बता देता हूँ. जैसे इन्फेक्टेड वर्टिब्रेट होस्ट है कोई, तो वर्टिब्रेट होस्ट में क्या बनेगा? अमेस्टिकोट. अमेस्टिकोट को इसको लीशमान डोनोवन बॉडीज भी बोलते हैं. देन फ्लेबोटोमस suck the blood. Phlebotomous sandfly suck the blood. Then it reaches to the midgut of that Phlebotomous and develops into promastigote. तो प्रोमेस्टिगोट कहाँ मिल रहा है? ये फ्लेबोटोमस मतलब कि इनवर्टिब्रेट में और कल्चर में भी मिलता है. तो उसके बाद मिडगट में पहुंचा, वहां से फेरिंग्स में आया, फिर उसने फ्लाई ने फिर होस्ट पे फीड किया, फीड ऑन होस्ट,
देन फिर वर्टिब्रेट होस्ट में गया, फिर ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू रहेगी। और ये इम्यून इवेजन एक तरह से और करता है। सपोज ये मैक्रोफेज के अंदर ये पहुंच गया, अब ये क्या करेगा कि जैसे जो मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन है ना, इसको अपने ऊपर ही लगा लेगा। सपोज ये यहाँ पे है, अब यहाँ पे फिर ये मैक्रोफेज की मेम्ब्रेन को अपने ऊपर ही लगा के ये बाहर आ जाएगा। तो अपने बॉडी को ऐसे लगेगा, होस्ट की बॉडी को, कि अपना ही है, इसको ये सेल्फ लगेगा। तब ये कोई इसमें फॉरेननेस नहीं है, आउटसाइडर नहीं लगेगा, तो वो भी डिस्ट्रक्शन से इस तरह भी बच जाता है। इसमें जो दूसरी स्पीसीज है वो है लीशमानिया डोनोवेनाई। इट कॉजेस विसरल लीशमानियासिस। विसरल लीशमानियासिस इज आल्सो नोन एज काला आजार और डमडम फीवर। डमडम is one airport in Kolkata. It was, I think, first occur in India in that Dum Dum place. That's why it is known as Dum Dum fever. I'm not sure about that, but trans it is transmitted by Phlebotomus argentipus. और लीशमानिया डोनोवेनाई का जो विसरल लीशमानियासिस कॉज करता है, उसका एक बहुत ही पेक्यूलियर सा फीचर है, वो है स्प्लीनोमेगैली। और कई डिसीजेस में भी होता है, पर इसमें स्प्लीनोमेगैली एंड हेपेटोमेगैली इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और डॉग्स में क्या होता है, आईज के अराउंड हेयर का लॉस हो जाता है, तो डॉग लुक लाइक स्पेक्टेकल्ड आइड डॉग। सर आवाज नहीं आ रही। तो ये व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा था ना? हाँ सर दिख रहा है। ठीक है, तो दैट व्हाइट स्पॉट्स नोड्यूल्स आर कॉल्ड पोस्ट काला आजार डर्मल leishmanoids. This was all about leishmania. Another protozoa is trichomonas. So in this one species is Trichomonas fetus. ट्राइकोमोनास फीटस का स्ट्रक्चर में कुछ चीजें हैं, वो याद रखना, वो ओटी में कभी कभी पूछ लेता है। जैसे इसमें 3 फ्लैजेला होते हैं। इट हैज 3 फ्लैजेला इंटीरियर, all 3 are of equal length. This is nucleus.
It has also one posterior free flagella. और ये पेलिकल है, और ये जहाँ पेलिकल से जहाँ पे फ्लैजिला अटैच है वो पूरी अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एक्सोस्टाइल। ट्राइकोमोनास फीटस कैटल में अबॉर्शन कराता है। सबसे जरूरी चीज है वो है कि इसका जो अबॉर्शन होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कराता है ये। और जैसे ब्रूसला जो है, ब्रूसला कब अबॉर्शन कराता है? लास्ट ट्राइमेस्टर। हाँ, तो ब्रूसला लास्ट में कराता है और ये फर्स्ट में कराता है ट्राइकोमोनास फीटस। तो अगर क्लिनिकल अबॉर्शन के बाद देखना, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ तो उसको अपन ट्राइकोमोनास फीटस सस्पेक्ट कर सकते हैं, और लास्ट में हुआ है तो ब्रूसला सस्पेक्ट कर सकते हैं। और ट्राइकोमोनास फीटस का जो शेप होता है वो पियर शेप्ड होता है। इट इज ट्रांसमिटेड बाय coitus. It also causes pyometra. फीमेल में अबॉर्शन कराएगा, और बुल में जो बुल की प्रिप्यूशियल कैविटी होती है उसमें जाके स्टे करता है ये। और मतलब बुल को ऐसा है कि अगर एक बार बुल इन्फेक्टेड हो गया तो वो कभी ट्रीट नहीं हो सकता इससे। वो परमानेंटली इन्फेक्टेड ही रहता है। तो उस बुल को अपन कभी भी नेवर यूज इन नेचुरल सर्विस और एआई। तो अगर बुल एक बार ट्राइकोमोनास फीटस से इन्फेक्टेड हो गया तो उसमें परमानेंट ही उसको वो कभी ठीक नहीं हो सकता, और वो कॉइटस के टाइम पे वो हमेशा स्प्रेड करता ही रहेगा उसको। तो उस बुल को अपन नहीं यूज करते हैं। और इसमें एक और फीचर है, वो है एनी स्ट्रेस का। तो इसमें एनी स्ट्रेस होता है तो ऑनर को लगता है दैट काउ इज प्रेग्नेंट, कैटल इज प्रेग्नेंट। तो ये कभी कभी कंफ्यूज भी करता है प्रेगनेंसी के साथ। इसमें ट्राइकोमोनास फीटस के इन्फेक्शन में फीमेल में एनी स्ट्रेस होता है तो ऑनर को लगता है काउ प्रेग्नेंट है, बल्कि वो प्रेग्नेंट नहीं रहती है। और इसमें यूटरस में ग्रीनिश वाइट ऑर्डरलेस मटेरियल मिलता है। उसके अंदर ट्राइकोमोनाज होते हैं, ट्राइकोमोनाज। बुल के केस में इट ऑल्सो कॉजेस प्रोलैप्स ऑफ पेनिस। इसकी डायग्नोसिस के लिए अपन देयर इज वन मीडिया विच इज नोन एज CPLM मीडिया। This one is important. In this cysteine is rare peptone, liver extract, maltose serum. Another media is BGPS. It is known as beef extract glucose peptone serum. Beef extract glucose peptone serum. Another media is diamonds media. ये सब मीडिया याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कोई पूछ ही लेता है कुछ ना कुछ। जैसे ही पीछे मीडिया आए थे ना ट्रिपेनोसोमा के लिए, वो भी नाम तो एटलीस्ट याद होना चाहिए, सुना सुना होना चाहिए। CPLM, BGPS, डायमंड्स मीडिया। एक सर्वाइकल म्यूकस एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है। इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन वी यूज मेट्री मेट्रिनजोल।
और इसकी एक टेस्टिंग की पॉलिसी होती है। अगर अपन किसी बुल को टेस्ट कर रहे हैं तो उस बुल को 6 टाइम्स अगर अपन एग्जामिन करें हर वीक पे, एवरी वीक इफ द बुल इज एग्जामिन्ड, तो अगर वो 6 टाइम निगेटिव आए तो वो ट्राइकोमोनास फीटस से निगेटिव, उसमें ट्राइकोमोनास फीटस इन्फेक्शन नहीं है। और ये है बुल के लिए। और अपन अगर कैटल में करें, ये भी पूछ सकता है, मतलब 6 बार में निगेटिव आना चाहिए, 6 बार निगेटिव आना चाहिए। कैटल में 3 निगेटिव टेस्ट आने चाहिए एवरी वीक अगर अपन उसको टेस्ट करें, और 2 उसकी नॉर्मल ईस्ट्रस साइकिल होनी चाहिए, तब अपन बोलेंगे कैटल निगेटिव। फीमेल में 3 बार और बुल में 6 बार। सेकेंड स्पीसीज इन ट्राइकोमोनाज इज ट्राइकोमोनास गैलिनी। इसका लीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट अकर इन पिजन, इट कॉजेस कैंकर डिसीजेस इन पिजन। अभी ट्राइकोमोनास फीटस में 3 फ्लैजेला थे एंटीरियर, इसमें 4 एंटीरियर फ्लैजेला होते हैं। और इसके जो लीजन्स होते हैं ट्राइकोमोनास गैलिनी के, ये पिछले बार एआर में आया था। तो ट्राइकोमोनास गैलिनी के जो लीजन्स हैं वो जो प्रोवेंट्रिकुलस होता है ना उसके नीचे नहीं जाते, नॉट एक्सटेंड्स बियॉन्ड प्रोवेंट्रिकुलस। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो लीजन है ना वो अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक ही कन्फाइंड रहते हैं। मोस्टली ये नेस्टिंग पिजन्स में लीजन्स होते हैं, उनको स्कैब्स बोलते हैं। उनमें इन्फेक्शन कैसे जाएगा? इन्फेक्टेड इधर बाई ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर, और बाय टेकिंग इन्फेक्टेड क्रॉप मिल्क ऑफ देयर पेरेंट। इनके लीजन के लिए अपन एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, उनको बोलते हैं येलो बटन्स। येलो बटन्स आर स्मॉल येलोइश एरियाज इन द माउथ कैविटी। और येलो बटन्स कहाँ रहेगा? हमेशा अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कंफाइंड रहेगा। ये जो स्कैब्स है ना, लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे। तो इससे क्या है, ये स्क्वेब्स क्या करेंगे कि ये केजियस नेक्रोटिक मांस की तरह होते हैं, तो ऑक्लूड करेंगे ल्यूमन को। तो इससे क्या है कि डाइजेस्टिव पैसेज ऑक्लूड होगा, तो उससे फीडिंग दैट pigeons stop feeding, नेस्टलिंग pigeons जो होते हैं। और ट्राइकोमोनास गैलिनी की जो यूजुअल लोकेशन है वो है ओरोनेजल कैविटी। इसमें जो याद रखना है वो येलो बटन, अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में उसका लीजन कन्फाइंड होता है, और उसका ट्रांसमिशन होता है क्रॉप मिल्क से। लोअर में नहीं जाएगा, ये बहुत जरूरी चीज। अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक कन्फाइंड होता है उसका लीजन। अनदर स्पीसीज इज हिस्टोमोनास। हिस्टोमोनास इज एन अमीबॉइड ऑर्गेनिज्म। It have single nucleus and one flagella. इसमें क्या है, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे फ्लैजेला जो पेलिकल से अटैच होता है ना, इसमें नो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन।
और इसमें एक्सो स्टाइल भी नहीं होता, जो ट्राइकोमोनाज में था वो भी नहीं होता, एक्सो स्टाइल एब्सेंट। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज है वो हिस्टोमोनाज मीलियाग्राइडिस। इट इज फाउंड इन सीका एंड लीवर। प्रोटोजोलॉजी से हर बार ही कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं, दो तीन तीन चार फिर भी, पर ज्यादातर क्वेश्चन लीजन से ही आते हैं, या तो उनकी लाइफ साइकिल में कुछ बहुत स्पेसिफिक सा स्टेज होगा। बहुत फिक्स से क्वेश्चन आते हैं प्रोटोजोलॉजी में, इजी भी रहते हैं, बहुत फिक्स से रहते हैं। ये सब नहीं पूछेगा कि जैसे स्टेमोनास मीलिया ग्राइडिस सीका एंड लीवर में मिलता है, पर ये सब पता रहता है तो उससे अपन रिलेट कर पाते हैं। इससे जो डिसीज होती है वो, उसका नाम है ब्लैक हेड डिसीज। ब्लैक हेड डिसीज इन टर्की। इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्शियस इंटेरोहेपेटाइटिस। और हिस्टोमोनास इज अ प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। मतलब कि इसकी जो अपीरियंस है ना, वो लोकेशन, अपीरियंस डिपेंड अपॉन लोकेशन, या तो उसकी स्टेज ऑफ ऑर्गेनिज्म और स्टेज ऑफ डिसीज। इसके चार फॉर्म होते हैं, वो उतना जरूरी नहीं है इसके हिस्टोमोनास के फॉर्म याद करना। हिस्टोमोनास में एक और जो ओटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वो, उसका जो ट्रांसमिशन होता है ना, वो एक नेमाटोड के थ्रू होता है, जिसका नाम है हेटेरेकिस गैलिनेरम। इसमें हिस्टेरेकिस गैलिनेरम, तो जो इसके वॉर्म्स होते हैं, मतलब इंजेक्शन ऑफ एग ऑफ सीकल वॉर्म, हिस्टेरेकिस गैलिनेरम, इसके एग के थ्रू हिस्टोमोनास का ट्रांसमिशन होता है। तो इसके एग हैच होंगे फिर इंटेस्टाइन में, और उससे फिर निकलेगा हिस्टोमोनास मीलिया ग्राइडिस। तो इसके उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हिट्रेकिस गैलिनेरम है ना, वो इसका ट्रांसमिशन करता है। हिट्रेकिस गैलिनेरम एक नेमाटोड है, और वो करता है किसका ट्रांसमिशन, हिस्टोमोनास मीलिया ग्राइडिस का, जो कि एक प्रोटोजोआ। हिस्टोमोनास मीलिया ग्राइडिस कॉज करता है ब्लैक हेड डिसीज इन टर्की, और उसका ट्रांसमिशन होता है हिट्रेकिस गैलिनेरम से, जो कि एक नेमाटोड है, उसके एग के थ्रू। और हिट्रेक ये इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई अर्थवॉर्म, बट इसका जो मेजर ट्रांसमिशन होता है वो हिट्रेकिस गैलिनेरम के थ्रू होता है। और इसमें जो एक हिट्रेकिस गैलिनेरम में और एक कैरेक्टरिस्टिक उसका डायग्नोसिस के लिए अपन देखते हैं, तो फॉर इट डायग्नोसिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज सल्फर एलोट्रोपिंग इन सिक बर्ड्स। तो जो हिट्रेकिस गैलिनेरम है ना, वो चिकन का नेमाटोड है, और जो हिस्टोमोनास मीलिया ग्राइडिस है वो पिजन का है, पिजन और टर्की का भी, पिजन टर्की। तो
इसलिए कभी भी चिकन एंड टर्की शुड नॉट बी reared टुगेदर। नहीं तो ये चिकन में हिट्रेकिस गैलिनेरम होगा, इसके एक्सिस में आ जाएगा, सिस में आ जाएगा, खत्म ही नहीं होगा, इसलिए चिकन एंड टर्की शुड नॉट बी reared टुगेदर। Another one is एंटामीबा। एंटामीबा में बस जो चीज याद रखनी है वो है कि इसमें फ्लास्क। सर ये डायग्नोसिस जो है सल्फर येलो ड्रॉप है, ये हम्म किसका डायग्नोसिस है? हिस्टोमोनास का या फिर इस हिस्टोमोनास नेमेटोडा का? हिस्टोमोनास का। जो बर्ड्स में हिस्टोमोनास गैलिनेरम का इन्फेक्शन होगा ना, उसमें अगर सल्फर कलर की ड्रॉपिंग्स आएंगी येलो कलर की, तो उसको चेक करते हैं अपन। वो हिस्टोमोनास का डायग्नोसिस है। ठीक है। इसमें एंटामीबा एक कैरेक्टरिस्टिक चीज ये है कि वो फ्लास्क शेप अल्सर इन इंटेस्टाइन। एक मिनट रुकना तुम लोग। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। एंटामीबा में जो एक पेक्यूलियर चीज है वो है कि इन दिस फ्लास्क शेप अल्सर्स आर फाउंड इन इंटेस्टाइन, और इसका जो सिस्ट होता है उसमें 1 to 8 न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। मतलब कि उसका जो सिस्ट है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिस्ट। इसमें और चीजें हैं पर ओटी के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को तो ओटी का एग्जाम देना है, वो उसकी लाइफ साइकिल से कोई मतलब नहीं है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सिस्ट इंपॉर्टेंट है, और फ्लास्क शेप अल्सर इन इंटेस्टाइन वो एक पिकुलियर कैरेक्टर होता है। इसमें 1 से 8 तक न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो सकते हैं। अनदर वन इज जियार्डिया। जियार्डिया इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। उसमें 2 एंटीरियर न्यूक्लियाई होते हैं और 8 फ्लैजेला होते हैं। पेयर्स में होते हैं, मतलब 4 पेयर होते हैं और टोटल 8 फ्लैजेला होते हैं। ये है जियार्डिया जो है वो यूरिजिनस पैरासाइट है। मतलब इसकी होस्ट रेंज जो है वो वाइड है, वो सब में मिलता है। मैन, डॉग में, कैट में, कैटल में, गोट में, क्वाइन में, शीप में, सब में, पिग में, गिनी पिग में, लैब एनिमल में, सब में, मंकी में। और इसका जो स्प्रेड होता है वो होता है बाई इंजेक्शन ऑफ सिस्ट, और बाई इंजेक्शन ऑफ बाई ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। तो इसके जो स्पीसीज है सबके आगे, जैसे इंटेस्टाइनलिस है तो मैन की है, कैनिस जो है वो डॉग की है, कैटाई कैट की है, बोविस कैटल की है। उसके बाद
कैपरी गोट की, इक्वाई, इक्वाइंस की, ऐसे स्पीसीज है इसकी। जिसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो एक यूरिजिनस पैरासाइट है। उसके 4 पेयर्स फ्लैजेला होते हैं, टोटल 8 होते हैं। और उसका स्प्रेड जो है वो इंजेक्शन ऑफ सिस्ट और cyst present in food or water। तो दूसरी स्पीसीज जो है सॉरी अनदर इज बेला टीडियम। बेला टीडियम का स्ट्रक्चर से एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड माइक्रो न्यूक्लियस इज किडनी और सॉसेज शेप्ड, किडनी और सॉसेज शेप्ड। और एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है और इसकी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे एक फूड वैक्यूल होता है। इट इज फाउंड इन रूमन एंड रेटिकुलम ऑफ रूमिनेंट्स। Also found in large intestine of equines, cecum and colon of pig. There is one species called Ballatidium coli, which is most common in pig. इसके ट्रीटमेंट के लिए अपन ओटीसी यूज करते हैं या मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं। ज्यादातर प्रोटोजोआ के ट्रीटमेंट के लिए अपन मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं। और इसके डायग्नोसिस के लिए इसका सिस्ट देखेंगे पीसेस में, इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोटोजोअन पैरासाइट ऑफ मैन। अब जो नेक्स्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो है कॉक्सीडिया। कॉक्सीडिया ऑफ पोल्ट्री एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। इसमें सारी चीजें अप्रोक्स इम्पोर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं पूछते ही हैं। कॉक्सीडिया इज ऑल्सो नोन एज आइमेरिया। इट इज एन इंट्रासेलुलर पैरासाइट। तो ये भी होस्ट के इम्यून सिस्टम की वेट करेगा ड्यू टू इट्स लोकेशन। और ये जो है वो स्टीनोजिनस पैरासाइट है। और इसका जो होस्ट है ना वो सिंगल होस्ट होता है, होस्ट इज सिंगल। उसी में वो सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन करते हैं और असेक्सुअल भी करते हैं।
In sexual reproduction, zygogony or merogony, and in asexual reproduction, gametogony. और इनमें जो जाइगोट जो पहले बताया था मैंने, माइक्रोगैमीट और मैक्रोगैमीट। तो माइक्रो जो छोटा वाला होगा वो मेल गैमीट है, और मैक्रो जो बड़ा होगा वो फीमेल गैमीट है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है इसका स्पोरोजॉइट और स्पोरोसिस्ट। तो इसमें दो चीजें होती हैं, जैसे जो आइमेरिया और कॉक्सीडिया, उसमें 4 स्पोरोसिस्ट होते हैं और 8 स्पोरोजॉइट होते हैं। ये पिछले बार आईसीआर में आया था, मतलब इसके साथ वाली व्याधि सार्कोसिस्टिस होता है। इसको सब एक जगह ही लिख लेते हैं। मेरिया है, सार्कोसिस्टिस, आइसोस्पोरा और टॉक्सोप्लाज्मा। इसको आप सेट से भी याद रख सकते हैं। सेट में क्या होता है, 2 into 8, मतलब कि 2 स्पोरोसिस्ट होते हैं और 8 स्पोरोजॉइट होते हैं। जैसे इसमें ये होता है स्पोरोसिस्ट, और इसके अंदर होते हैं 2 2 2 और 2। तो 4 स्पोरोसिस्ट होते हैं और 8 स्पोरोजॉइट होते हैं, मतलब एक स्पोरोसिस्ट के अंदर 2 स्पोरोजॉइट होते हैं। और इसी तरह सार्कोसिस्टिस, आइसोस्पोरा और टॉक्सोप्लाज्मा में 2 स्पोरोसिस्ट होते हैं और उनके अंदर 4 स्पोरोजॉइट होते हैं। और एक है क्रिप्टोस्पोरेडियम। उसमें 0 स्पोरोसिस्ट और 4 स्पोरोजॉइट। तो इसको अपन अगर नाम से बोलते हैं, जैसे कोई पूछता है, तो इसमें ऐसे बोल सकते हैं, टेट्रा स्पोरोसिस्टिक है, क्योंकि स्पोरोसिस्ट 4 हैं, तो टेट्रा स्पोरोसिस्टिक और बाई स्पोरोजॉइक, क्योंकि एक स्पोरोसिस्ट में कितने स्पोरोजॉइट है, 2, तो टेट्रा स्पोरोसिस्टिक, बाई स्पोरोजॉइट। और ये बाई स्पोरोसिस्टिक एंड बाई स्पोरोजॉइक, एक स्पोरोसिस्ट में, नहीं सॉरी, बाई स्पोरोसिस्टिक एंड टेट्रा स्पोरोजॉइट। अब एक स्पोरोसिस्ट में 4 स्पोरोजॉइट है, तो या तो ऐसे याद कर लो, ऐसे 2 into 8, और ये 4 into 8 होता है, और इसका जस्ट आधा 2 into 8 सेट में होता है, और ये 0 into 4 होता है, इसमें 8 का आधा होगा। तो ये 4 into 8, ये 2 into 8 और 0 into 4। आइमेरिया में 4 into 8, SIT में 2 into 8 और क्रिप्टोस्पोरेडियम में 0 into 4। ये हर बार ही आता है, इसको तो याद ही रखना। और इसमें से टॉक्सोप्लाज्मा, सार्कोसिस्टिस एंड क्रिप्टोस्पोरेडियम, ये होते हैं जूनोटिक।
अब कॉक्सीडिया ऑफ डोमेस्टिक फाउल। इसके लिए मैंने जनरल पैरासिटो की क्लास में बताया था कि इसका जो मतलब इसमें एग की डायग्नोसिस उतनी ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसका जो प्री पेटेंट पीरियड होता है वो बड़ा होता है इंक्यूबेशन पीरियड से। इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट होता है तो सिम्टम पहले आ जाते हैं और सिस्ट बाद में आते हैं, और जब तक सिस्ट आएगा जब तक तो डैमेज हो चुका होगा, तो इसलिए इसमें फीकल सिस्ट डिटेक्शन उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है एमेरिया की डायग्नोसिस। डोमेस्टिक फाउल में आइमेरिया की स्पीसीजेस बहुत सारी हैं, सारी स्पीसीजेस तो नहीं बताऊंगा, बहुत सारी स्पीसीजेस हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है उनकी पैथोजेनेसिस, जैसे कि 3 टाइप्स ऑफ कॉक्सीडियोसिस आर रिकॉग्नाइज्ड इन पोल्ट्री। फर्स्ट वन इज इंटेस्टाइनल। इंटेस्टाइनल में आइमेरिया नेकेट्रिक्स, आइमेरिया मैक्सिमा, आइमेरिया मिवाटी एंड आइमेरिया बर्नेटाई। Second is cecal coccidiosis. Cecal coccidiosis is caused by Eimeria tenella, and rectal coccidiosis is caused by Eimeria burnettii. Eimeria tenella is also the most pathogenic coccidia of chicken. In terms of pathogenicity, first is Eimeria tenella, then comes Necatrix, then Burnettii, then Acervulina. जो आइमेरिया टेनेला होता है, it commonly occurs in 4-week-old chicks. Commonly occur at 4-week-old chick. और जो आइमेरिया इसमें नेकेट्रिक्स होता है वो मोस्टली ओल्ड बर्ड्स को अफेक्ट करता है। इसमें क्या क्या होगा, इंटेस्टाइनल कॉक्सिडियोसिस में एक तो वाटरी डायरिया और म्यूकॉइड ड्रॉपिंग अराउंड वेंट फेदर्स, और फीकल कॉक्सिडियोसिस में रेड डायरिया होता है, मतलब इसमें सीवियर एनीमिया होता है, हेमरेज होता है। तो ये भी 4-week ओल्ड बर्ड को अफेक्ट करता है, 4 week ऑफ एज, यंग वन को ही करता है, ये भी अडल्ट को नहीं करता। और आइमेरिया बर्नेटाई में इसमें वाइट फ्लूइडी ड्रॉपिंग मिक्स्ड विद ब्लड एंड म्यूकस। इसमें ये जरूर याद रखना तुम लोग, आइमेरिया टेनेला, कैट्रिक्स, बर्नेटाई एंड एसरबुलिना। इसके डायग्नोसिस के लिए अपन
क्या कर सकते हैं, फीसेस से भी डायग्नोज कर सकते हैं, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। मोस्टली जो पैथोजेनिक कॉक्सीडिया उससे बर्ड की डेथ ही हो जाती है, तो अपन पीएम एग्जामिनेशन करके पता लगाते हैं। और इस पे ट्रीटमेंट में जो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो है शटल प्रोग्राम। शटल प्रोग्राम का मतलब है कि डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड इन रोटेशन। जैसे कि पहले अपन सपोज पहली बार एम्प्रोलियम यूज किए, फिर मोनेंसिन यूज किए। अब एक ही एक ड्रग को बार बार नहीं यूज करना, नहीं तो वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो ये याद रखना है कि फॉर ट्रीटमेंट ऑफ आइमेरिया इन पोल्ट्री शटल प्रोग्राम इज फॉलोड। फिर इसमें इम्यूनो प्रोफाइल एक्सिस में वैक्सीन के नाम याद रखने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो अपन वैक्सीन यूज करते हैं, एक तो है वो कॉक्सीवैक, एक इम्यूनोकॉक्स, पैराकॉक्स, कॉक्स एबिक है। कॉक्स एबिक जो है वो प्यूरिफाइड सब यूनिट वैक्सीन है। एक लीवा कॉक्स है। इसका प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में एक अपन फ्यूमिगेशन कर सकते हैं फ्रॉम मिथाइल ब्रोमाइन। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर ऑक्सीजन नहीं है तो इसका जो oocyst है वो स्पोरुलेट नहीं होगा। oocyst विल नॉट स्पोरुलेट। ऑक्सीजन नहीं है तो oocyst स्पोरुलेट नहीं होगा। oocyst के स्पोरुलेशन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। दिस वॉज ऑल अबाउट आइमेरिया ऑफ पोल्ट्री। अब उसके बाद कॉक्सीडिया ऑफ कैटल एंड बफलो। तो इसमें जो स्पीसीज है वो आइमेरिया बारेलई है, फिर अल्बामेंसिस है, बोविस है। आइमेरिया बोविस कॉमनेस्ट स्पीसीज है। ये मोस्टली सारी आइमेरिया जो है वो कैटल में 3 to 6 मंथ ऑफ एज में डिसीज कॉज करती हैं सीवियर। फिर आइमेरिया बर्सीलेंसिस है। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आइमेरिया जूरनाई। आइमेरिया जूरनाई है मोस्ट पैथोजेनिक स्पीसीज। इट कॉजेज विंटर कॉक्सिडियोसिस इन कैटल। एक दूसरी आइमेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आइमेरिया स्टीडिए। इट कॉजेज हेपेटिक कॉक्सिडियोसिस। ज्यादातर आइमेरिया जो है वो उनकी लोकेशन इंटेस्टाइन में ही रहती है, ज्यादातर डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। लेकिन एक ऐसा आइमेरिया आइमेरिया स्टीडिए जो हेपेटिक कॉक्सिडियोसिस करता है इन रैबिट्स। और ये आइमेरिया स्टीडिए वाज द फर्स्ट पैरासिटिक प्रोटोजोआ। फर्स्ट पैरासिटिक प्रोटोजोआ डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक। फ्रॉम गॉल ब्लैडर ऑफ रैबिट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आईसीआर में। Aimerias TDA causes hepatic coccidiosis in rabbit. It is the first parasitic protozoa discovered by Leeuwenhoek. एक है आइमेरिया ल्यूकार्टी।
This is a Eimeria of equine. It has biggest size coccidia oocyst. Biggest coccidia oocyst. ये sheep goat के भी coccidia हैं लेकिन वो इतने important नहीं है. Okay. और आइमेरिया इन्फेक्शन की एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है उसमें जो फीसस होता है ना, अगर आइमेरिया का इन्फेक्शन है तो उसमें जो फीसस होगा वो फाउल स्मेलिंग होगा. Another species is Neurospora. सर ये लास्ट है क्या? Neurospora caninum. It occurs in cattle, sheep, and dogs. It also causes abortion in 5 to 7 months of age. और ये present तो Neurosporum caninum is present in cattle, sheep, and dogs, but only dog can pass parasite in the feces. मतलब वो केवल डॉग के फीसेस में ही प्रेजेंट होगा, बाकी और किसी के फीसेस में नहीं प्रेजेंट होगा. बस न्यूरोस्पोरा कैनाइनम में बस इतना ही याद रखना है, अबॉर्शन कराता है, डॉग के फीसेस में पास होगा. इससे कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है. उसके बाद आता है क्रिप्टोस्पोरेडियम. ये एक जूनोटिक. Excuse me, sir. I think that is Neospora, sir. Neospora caninum, I think so. Neurospora is a fungus, right? हाँ, सॉरी, इट्स अ न्यूस्पोरा कैनाइनम. Another one is Cryptosporidium. It is a zoonotic parasite. It has the smallest oocyst. ये पिछले बार लास्ट ईयर आईसीआर एग्जाम में आया था. इट इज अ जूनोटिक पैरासाइट क्रिप्टोस्पोरिडियम. इट हैज अ स्मॉलेस्ट oocyst among coccidia. इसलिए इजीली ट्रांसफर हो जाता है द फूड. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिप्टोस्पोरिडियम इज अ जूनोटिक पैरासाइट. इट हैज 4 नेक्ड sporozoites and no sporocyst. पहले बताया था ना, जब उसमें बता रहा 0x4 आता है इसमें. इसका इन्फेक्शन कैसे होता है? इन्फेक्शन इज बाय इंजेक्शन ऑफ
oocyst by contaminated food and water. Also spread by inhalation. तो इसका this has a smallest oocyst और inhalation से ट्रांसफर होता है, तो इसलिए ये बहुत ही it spreads very fastly. So if it is by ingestion, then it reaches small intestine, and if it is by inhalation, it reaches the respiratory tract. Then release of sporozoites और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है पैरासिटोफोरस एनवेलप. स्पोरोजाइट के रिलीज के बाद रिलीज ऑफ स्पोरोजाइट it does not penetrate the microvillus membrane and epithelial cell. मतलब it does not penetrate the microvillus membrane. सपोज ये सेल है तो ये यहाँ पर ही प्रेजेंट रहेगा. ये it does not penetrate the microvillus membrane or epithelium. This is known as a parasitophorous envelope. This is a very important point in the Cryptosporidium. And this type of location is known as intracellular extracytoplasmic. Intracellular extracytoplasmic. So Cryptosporidium has intracellular and extracytoplasmic location. And feeder or attachment organelle is present. It is very unique to this. It is very unique to this Cryptosporidium. So you have to remember that feeder is present, location is intracellular and extracytoplasmic. A parasitophorous envelope is present. Then type of oocyst in Cryptosporidium. One is thin-walled and another is thick-walled. The thick-walled type oocyst passes through feces. Passes out through feces. But the thin-walled type of oocyst does not passes through does not passes through feces. It remains in intestine and initiates a new developmental cycle. So due to this reason, it causes auto-infection. So this one is very important point. In Cryptosporidium, there is auto-infection and thin walls due to the thin wall cyst, because it does not passes through the feces, it remains inside the intestine. And this is the only coccidia in which auto-infection is present, Cryptosporidium. Clinical signs include villus atrophy,
degeneration and sloughing of enterocytes, enteritis, and if it is spreading by inhalation, then lung fibrosis. If oocyst is inhaled, and for its diagnosis, MZN staining is used. This was all about Cryptosporidium. Another parasite is Toxoplasma. It is also a zoonotic parasite. Same two sporocyst and four sporozoite, eight sporozoite are present, which I have already told you. Its definitive host is domestic cat, simply cat. Its the definitive host is cat. It is an intracellular parasite. You have to remember its transmission. It is transmitted by congenital route also. It is transmitted by congenital route, carnivorism, also by fecal-oral route. It has three infectious stages. First one is tachyzoite. Second one is bradyzoite. And third one is sporozoite. Tachyzoites is found in pseudocytes. Here tachy means the speed. So tachyzoite stage is a rapidly dividing form. And brady means slow. So it is a slow dividing form. And bradyzoid is formed in the tissue cyst. This you have to remember that bradyzoid is found in the tissue cyst and it is a slow dividing form. And the sporozoite stage is found in sporolated oocyst. Now its life cycle is oocyst. इसके जो oocyst होते हैं, they are only produced in definitive host only. Oocyst only produced in definitive host, that is cat. So oocyst passed in feces of cat, then ingestion by human or other intermediate host, then oocyst develop into tachyzoids. They rapidly multiply in cells. They causes abortion in pregnant women or in pregnant women. Then tachyzoids
localize in muscle tissues, and CNS. And here, tachyzoids which are present in muscle tissue and CNS, they later converts into tissue cyst that are bradyzoids. They are present in tissues like lung, liver, kidney, brain. So anyone can get infection by ingestion of meat also, because in tissue cyst that bradyzoids are present. So definitive host, cat and other felids, they can be infected by any three stages. It's not like that ki they are getting infection by bradyzoid or tracheozoid or sporozoid. They can be they can get infection by any three infectious stages, by tracheozoid or by bradyzoid or by sporozoid. Means its simple life cycle is like that ki suppose there is tissue cyst present in sheep or pig, then cat eats it, then again cat कैट के फीसस में वो cyst आएगा, इसको ह्यूमंस में भी जा सकता है. मतलब overall I want to say that definitive host, that is cat and other felids, they can get infected by any of the three stages, any of the three infectious stages, that is tachyzoid, bradyzoid and sporozoid. इसमें बस आपको ये याद रखना है कि bradyzoid is a slow dividing form and it is present in a tissue cyst, it is present in tissues, and tachyzoid is a rapidly dividing form, and sporozoids are found in sporulatidosis. And another important thing is that is diagnosis. In its diagnosis, there is one torch test. Second, very important is Sabin-Feldman dye test. We can also do latex agglutination test and ELISA. There is one test called MAT, modified agglutination test. And there is one vaccine named Toxovac, which is a live toxoplasma vaccine. It contains live tachyzoids of S48 strain of toxoplasma. This toxoplasma has two developmental cycles. This is very important in this toxoplasma. First one is enteroepithelial cycle. It occurs in felines. And second one is extraintestinal. Occurs in non-felids. Non-felids means intermediate host.
So you have to remember that extra enteroepithelial cycle occurs in felines and extra interstitial cycle occurs in intermediate host, which are non-felines. हेलो, ये टॉक्सोप्लाज्मा की लाइफ साइकिल में भी कंफ्यूजन होगा किसी न किसी को तो बताया वो। हेलो, हेलो, हाँ सर। ये टॉक्सोप्लाज्मा की जो लाइफ साइकिल है वो समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में तो आ गई। उसके बाद ब्रेडिजोइड के बाद वो क्या होता है, जब इम्यूनिटी कम होती तब वो जाके उसमें उसमें कन्वर्ट। नहीं, वो 3 स्टेजेस है, वो अलग चीजें हैं, मतलब वो 3 में से कोई एक ही स्टेज होगी। जैसे एक बार और बता देता हूँ मैं लाइफ साइकिल, बस इसके बाद टॉक्सोप्लाज्मा के बाद बाकी चीजें अपन कल पढ़ लेंगे। आज कुछ ज्यादा हो रहा लगता है मेरे को, अब मेरा मन भी नहीं कर रहा अभी पढ़ाने। तो हाँ टॉक्सोप्लाज्मा की सर। लाइफ साइकिल में फिर से बता देता हूँ, मतलब दूसरे तरीके। सपोज जैसे होस्ट है ना इसकी टॉक्सोप्लाज्मा की, वो कैट है, तो कैट में क्या होगी, सेक्सुअल साइकिल होगी। तो जो टिश्यू सिस्ट है, तो टिश्यू सिस्ट में क्या प्रेजेंट है, दैट ब्रेडिजॉइड। तो जो ब्रेडिजॉइड है, ब्रेडिजॉइड कहाँ डेवलप हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है इंटरमीडिएट। तो जैसे अगर उसको किसी मैन ने खाया है, तो वो इंसान के अंदर वो ब्रेडिजॉइड डेवलप हो, तो उसको कैट ने खा लिया उस ब्रेडिजॉइड को। तो कैट में क्या होगा कि कैट के इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इन इंटेस्टाइन इट इन्वेड द इंटेरोसाइट्स, और व्हेन इट इन्वेड्स द इंटेरोसाइट, वहां पे होगा उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देयर माइक्रो एंड मैक्रो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। फिर उसके oocyst जो होंगे, oocyst में क्या होगा, स्पोरोजोइट होगा। टैकिजॉइड ब्रेडिजॉइड होगा टिश्यू में, और oocyst में होगा स्पोरोजोइट। तो oocyst वो फीसेस से बाहर आएंगे, कैट के फीसेस से बाहर आएंगे oocyst, और स्पोरोजोइट से फिर टैकिजॉइड बनेगा, जो कि रैपिडली मल्टीप्लाइंग स्टेज होती है, उसकी रैपिडली डिवाइडिंग स्टेज होती है। मतलब ये जैसे सर टैकिजोइड कहाँ पे बनेगा? सपोज स्पोरोजोइड को किसी रैट ने खा लिया, oocyst को किसी रैट ने खा लिया, तो रैट के अंदर टैकिजॉइड बनेगा। सेकंड जो होगा ना, उसका सेकेंडरी होस्ट होगा। ये कैट तो उसका डेफिनेटिव ओके होस्ट हो सर। गया, और उसने oocyst रिलीज किया, और oocyst के अंदर है स्पोरोजोइड। फिर उस स्पोरोजोइड को सपोज किसी रैट ने कंज्यूम कर लिया, अगर रेट ने जैसे उसका फीसस खा लिया, तो उसके अंदर रेट के अंदर टैकिजॉइड डेवलप हो जाएगा, जो कि रैपिडली मल्टीप्लाइंग स्टेज होती है। और उसके बाद क्या होगा कि उसी रेट के अंदर फिर से ब्रेडिजॉइड बन जाएगा। किससे, टैकिजॉइड से। टैकिजॉइड विल कन्वर्ट इनटू ब्रेडिजॉइड। अब ब्रेडिजॉइड की लोकेशन क्या है, टिश्यू में, मतलब कोई रेट की किसी भी मसल में वो ब्रेडिजॉइड होगा, वो होगा स्लो ग्रोइंग, वो होगा स्लो ग्रोइंग। टैकिजॉइड तो रैपिडली डिवाइडिंग, ब्रेडिजॉइड होगा स्लो ग्रोइंग। और फिर उस ब्रेडिजॉइड
को फिर से कैट ने खा लिया। मतलब यहाँ पे रैट की जगह मैन भी हो सकता है, मतलब मैन के मीट में भी डेवलप हो सकता है, कोई भी हो सकता है यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट की जगह जो इसका फीसेस कंज्यूम कर ले। पिग भी हो सकता है, सेकेंडरी होस्ट कुछ भी हो सकता है, मतलब जो इसको फीसेस को कंज्यूम करे उसके अंदर ग्रो करेगा और उसके बाद इसको फिर से कैट ने खा लिया। तो कैट के अंदर मतलब इसमें जो ब्रेडिजॉइड है वो कैट ने कंज्यूम कर लिया, कैट के अंदर फिर सेक्सुअल साइकिल हुई, फिर वो साइकिल कंटिन्यू हुआ। शायद समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, तो बाकी के प्रोटोजोआ अपन कल से कंटिन्यू करेंगे। कुछ बचे हैं ये प्लाज्मोडियम, हीमोप्रोटियस, हेपेटोजोन, बबेसिया, थिलेरिया, कुछ ही बचे हैं, उनको अपन कल पढ़ लेंगे। ठीक है ना, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। अगर किसी को कोई डाउट हो तो उस पे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें लिख देना, और इसके चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, आई एम गोइंग टू एंड द क्लास।